Okay, so I'll explain you all the MVC architecture again from scratch as to what MVC actually means. Okay, so in any real-time development, you'll have three main components: the front end, which the client will access; the back end, which forms the major part of the application; and then if the backend needs to fetch data from any database, then we also have a database component. So how many components are these? So how many components do you see over here now on my screen? Now are you all able to see? Yes guys? Okay, so front end, back end and the database, and in real time. Okay, so if I take example of Amazon and Netflix and Google, in real time these three are on three different machines. Okay, so if I'm using Gmail, my mobile is my front end machine, right? That goes and hits the back end, so that is the Gmail server. Okay, so the application server. And then if Gmail is storing all those emails at a particular database, that might be at a different location. So these all three machines have different IP address in real time. So this is I1270.0 machine number 1. This might, in real time it is machine number, this different machine, and database is from a different machine. Okay, but in our lab environment, all these three are on the same machine, so we use localhost. So we have the front end, the back end application server, and the database server. Okay, and the back end, the front end. Now this package is, see, I've drawn back end comparatively very big, right? Because the back end has lots and lots of files and classes and interfaces. Okay, so it's like a huge campus. So for the front end, we have one single point of contact. So if the front end wants to send anything to the back end and wants to receive anything from the back end, it has one single point of contact that we call as the controller. So what is the controller? Controller is a single point of contact for the front end. So if you join a company and the HR mails you, so who are you in touch with for the joining and onboarding? HR, right? So she is the single point of contact for you in the company, right? So like this, there are lots and lots of layers in the backend, which we will study as we progress. There are many layers. So whom will the front end contact for the information? So if the front end wants to send some data, if the front end wants to send some data, okay, so whom will he send the data to? And the front end wants to receive some data, from where will it take the data from? So this green arrow is the data coming from the front end to the back end, and the red arrow is the data going from the back end to the front end, correct? So the MVC, the C part is done. We are studying MVC. So C means controller, right? So what is controller? The single point of contact for the front end from the back end team. So the back end, there are lots and lots of hundreds and thousands of classes are there in the back end. So who will the controller among these people contact? So in the end, if you get an offer letter from a company,
There are hundreds and thousands of employees working in that company. Whom will you contact? Whom will you do the follow up with? HR. So that HR who has sent you the mail is your single point of contact. So you will always contact and take updates from the HR, right? So like this, if the application is huge, a very voluminous application with hundreds and thousands of classes, the front end will contact whom for information? Controller. Okay, front end will help the user to display the data. So we call this as view. So view is the V for V for view, right? Okay, now if I have a view that I want to register a student, so I will make a web page and I will ask the customer to enter these information, right? So I'll ask the user to enter employee number or roll number if he is a student, his name, okay, so I'll ask him to enter his roll number, name and percentage in a web page which I will design, and if he enters the information 101 Alice and 78.5 and then clicks on register or clicks on the save, so what will happen behind the scene is all this data will be taken and converted into an object, a JSON object. So this is how a JSON object looks like. Starts and ends with a parenthesis and it is key value pairs. So RNO and colon and the value. So the value is number. You have an option. Either you can give double quotes or you cannot give double quotes. It's up to you. S name. And percentage. So it will create an object like this, and this object will be sent to the front end. So let's convert this into an object. I will call this notation as my object notation. So the hexagon I will call as the object. So what is the front end receiving? Yes, from the front end. From the front end, what is being passed? Object is being passed, and that object will go to the controller. Correct? Now the controller will just receive that object, and to perform the task the controller will delegate to its team and pass it on further. So controller has an entire team to perform its task. So controller is like the waiter who comes and takes your order. So if you have ordered something to the waiter, will he go and prepare in the kitchen? Or will he get it prepared from a team? So that waiter is a single point of contact for the customer. Customer will give order to the waiter, will receive order from the waiter. What is happening behind the scenes? Okay, the customer is not interested in. Similarly, front end is just concerned with the controller, that I am giving you the data and this is what I want and the controller will then give response to the customer back. So they will just trade in the form of objects. So these objects which are being traded, okay, by the view and the controller, those are called as model. So if I have an object, means I have to make a class. Yes or no? So in the backend we will have one model area also. Okay, so I'll make a class. So all the keys of that object
all these keys will be data members of that class. So what are we doing? Registering a student. So I'll make a student and integer. This should match, okay, character by character. So can I say roll number like this? Will it work? Will it work? Yes, no, maybe. No, no, but roll number I've given what key? RNO, right? You have to be a bit vigilant over there. Then string, yeah, I'm passing it as a string, but you can take it as a, why, see, if you are passing a number, it's your choice whether you want to give double quotes or no. So if you don't want to give double quotes, don't give. Similarly over here also, but it's a good rule to keep it. No worries. Then string what? Student name or S name? And then double percentage, right? PER, correct? So this class which we are sending and receiving is your model class. Is which class? So this is your model which you are sending and receiving. Okay. So I'll just give you all the heads up. Okay. So I'll just put this over here on top backend. You all know this is the application server running on a different machine. So the controller will take the data and give it to the service layer for processing. Which layer? And service layer, if now this layer is if it wants to interact with the database. Okay, so when it comes to database interaction, we have a separate layer we call as a DAO layer or repository layer. Which layer? DAO or so if the service needs some data, so service will ask the repository that I want some data. The repository has access to the database. Repository will fetch the data from the database and then give it to the service. Service will prepare the response which we have to send to the controller, will give to the controller, and controller will then give it back to the client. This is how application flows over here. So now have you got the three words model, view, controller? So what is model, what is view, what is controller? Mm-hmm. 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 Yeah. So I will call this as my register.html. What will I call this as? Register.jsp, register. Whatever name you want to give. Register, if you want to give, you can give register.jsp also. So here, this is the name of the view. Just this. The file name is the name of the view. So what is the view name over here? Register. Okay, and this is the extension. This is just the extension. So here register dot JSP, and in which location you are keeping this. Let's say I am keeping this in the web inf slash view folder. Okay, so whatever I have written in the red, that is the location of the file, correct? And whatever I have written in blue, that is the extension of the file, correct? What is the actual view name? What is the actual view name? Yes, so whenever the controller will return, it will return the view name. What will it return? View name. Getting it?
सो फाइल में, न्यू में, अदर में, सर्च फॉर डायनामिक. If you can get dynamic web project, very good. Click on dynamic web project and click on next. Okay, give the project name. So I will give the following what prefix for your batch. ITV weekend, right? ITV weekend first MVC. Okay, Apache Tomcat 9, dynamic web module 4. Okay, stick to these configurations. If you are getting anything else, please adjust to this and finish. Once you finish, you will see the project name reflecting over here. Okay, so ITV weekend first MVC. Expand the project and you will get something like this, correct? Now I have a document also which I have made for you guys, which if you all follow step by step, you all can easily complete all the configurations. So let me share the document also with you all. So follow these steps. I'll add these to the video also. So ये टॉमकैट को कैसे इंस्टॉल करना है वो तो अपना हो गया था. फिर न्यू जाके बनाना है, अदर में जाके डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, ये भी हो गया तुम लोग का. फिर रन टाइम 9 रखना है और मॉड्यूल 4 रखना है. ठीक है, जब ये हो जाए तो फिर सर्वर अपना क्रिएट कर लेना, क्योंकि हमने ऑलरेडी सर्वर क्रिएट किया है, राइट? आप लोगों ने टॉमकैट ऐड किया है ना पहले से, है ना? तो टॉमकैट ऐड किया है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली हम लोग फिर फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं. यहाँ पर अपना फर्स्ट आ गया MVC. ठीक है, तो जो आपने सेटिंग्स किए हैं एक बार जाके क्रॉस चेक करना है. अगर किसी ने कुछ गलत सेटिंग्स इनिशियलाइज कर दिया होगा क्रिएशन करते वक्त तो वो क्रॉस चेक कर सकता है. तो राइट क्लिक करना प्रोजेक्ट पे और प्रॉपर्टीज़ पे जाके, ओके, और फैसेट्स, प्रोजेक्ट फैसेट्स पे जाके चेक कर लेना एक बार कि वेब मॉड्यूल 4 है, जावा 1.8 है, जावास्क्रिप्ट 1 है और रन टाइम्स में अपाचे है. तो ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना. ठीक है, मॉड्यूल 4, जावा 1.8, जावास्क्रिप्ट 1 और जो अपने अपाचे टॉमकैट दिख रहा है वो आ रहा है क्या, एक को चेक कर दो जो आप यूज़ करने वाले. अप्लाई और क्लोज कर देना. ये स्टेप हो जाए, ये भी स्टेप हो जाएगा. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में गए और प्रोजेक्ट फैसेट्स में गए. प्रोजेक्ट फैसेट्स में जाके, ठीक है, प्रोजेक्ट फैसेट्स में जाने के बाद में ये चीज़ें सेट कर ली. ठीक है, अगर कुछ कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं यहाँ पर. रन टाइम भी देख लिया. ओके, अब यहाँ पर आ जाते. ठीक है, यहाँ से अपना MVC शुरू होगा. तो आप लोगों को मैंने 2 फाइल भेजी है, देखो, वेब XML और स्प्रिंग MVC डेमो, है ना आदित्य? तो वो दोनों फाइल को कहाँ डालना है, देखो, कॉपी द वेब XML एंड स्प्रिंग MVC डेमो फाइल एंड पेस्ट इन द वेब INF फोल्डर. विच फोल्डर? वेब INF. तो देखो, फिर मैं ये कॉपी कर रहा हूँ दोनों फाइल को और कहाँ पेस्ट करने जा रहा हूँ. वेब INF कहाँ मिलेगा? SRC को एक्सपांड करना, मेन को एक्सपांड करना, वेब ऐप को एक्सपांड करना, वेब INF मिलेगा. मिला? तो वहाँ इन दोनों फाइल को पेस्ट कर देना. Ctrl+V करके कॉपी करो हार्ड डिस्क से और Ctrl+V करके पेस्ट कर दो. यहाँ दिखेगी, दिख रही है? यस और नो? कोई स्टेप नहीं समझ में? दूसरा, फिर जितने हमने जार्स डाउनलोड किए थे याद है स्प्रिंग कोर में, पार्ट 1 पार्ट 2, है ना? तो वो भी मैंने मेंशन किया इधर.
कि जो भी आपने जार्स डाउनलोड किए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 उनको भी कॉपी पेस्ट करना है और लिब में डालना है। दिख रहा है? एक्सट्रैक्ट ऑल द स्प्रिंग जार्स एंड पेस्ट ऑल द जार्स इन विच फोल्डर? लिब फोल्डर। तो जहाँ भी आपके जार्स होंगे, जहाँ आपने डाउनलोड किए होंगे, वो सब उठा लो और यहाँ डाल दो। तो मेरे जहाँ भी जार्स होंगे मैं वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। तो ये पार्ट 1 के जार्स हैं, सारे कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, एप्लीकेशन में आया, लिब में जा गया और वहाँ कंट्रोल वी कर दिया। तो देखो सारे के सारे जार्स ऐड हो गए पार्ट 1 के। ऐसे ही पार्ट 2 के भी ऐड करो। कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो और यहाँ जाओ लिब में और कंट्रोल वी कर दो। सो सारे के सारे जार्स अपने यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, तो 60 के अप्रॉक्स थे ना। वो सब जार्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, करेक्ट? ये 2 स्टेप कर लो। ओके, तो लिब में ये दोनों डाल दो। तो ये हो गया स्टेप। ओके, तो 6A हो गया, वेब INF में दोनों फाइल डाल दिए, 6B भी हो गया। ओके, अब जाके जो हमारी ये वाली फाइल है वेब XML, ये तो ठीक है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये फाइल को भी टच करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे रखो। ये वाली जो फाइल है इसमें जो आपका बेस पैकेज होगा आप वो डाल दो। तो अगर आपका बेस पैकेज होगा ITV, जो आपका डोमेन का पैकेज होगा, तो com.company_name, तो वो डाल दो। अब आपको इसी डोमेन से सारे पैकेजेस बनाने हैं गोइंग फॉरवर्ड आपके जावा रिसोर्सेज में जाके। जो जावा रिसोर्सेज में जाना है, ओके, एक्सपांड जावा रिसोर्सेज, ये दिख रहा है SRC मेन जावा, उसमें जाके राइट क्लिक करके न्यू और पैकेज बनाना है यही टाइप से com.itv, और तीनों के पैकेज बना लो। ये व्यू तो फ्रंट एंड के लिए है, बैक एंड वाले 2 क्या थे? बैक एंड, तो उसको ही ये जो बेस पैकेज है उसका ही एक्सटेंशन बनाना है com.itv.controller, SRC मेन जावा में जाके, और SRC मेन जावा में जाके वापस न्यू पैकेज com.itv.model। तो जो आपने बेस पैकेज दिया है इधर आपको वही फॉलो करना है। अब देखो ये इसके ऐसे आ रहा है अलग अलाइन, हालांकि दोनों एक ही इसके अंदर है। तो राइट क्लिक करो प्रोजेक्ट पे और रिफ्रेश कर लो एक बार, तो प्रॉपर अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों पैकेज इसमें है। ओके, उसके बाद आपके व्यूज़ कहाँ होंगे वो यहाँ लिखा हुआ है। व्यूज़ सारे कहाँ होंगे आपके? आई शोड यू ऑल नो, व्यू अपन सिर्फ जो कंट्रोलर है वो सिर्फ व्यू का नाम देगा। कंट्रोलर क्या देगा? ब्लैक पार्ट देगा। क्या देगा कंट्रोलर? और उसके आगे जो है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं उसको? और जो बाद में है उसको बोलते हैं सफिक्स। तो व्यू के आगे क्या लगाना है, प्रीफिक्स क्या करना है और सफिक्स क्या करना है, वो हमको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इस फाइल में। तो आपका प्रीफिक्स
आपकी व्यू कहाँ मिलेगी हमको? कहाँ मिलेगी व्यू? ओके, सो इसके लिए हम लोग बोलेंगे हमारा व्यू का प्रीफिक्स क्या होगा? व्यू कहाँ मिलेगी? वेब INF के कौन से फोल्डर में? तो वेब INF में व्यू फोल्डर है तो देखो है क्या? नहीं है तो क्रिएट कर लो। तो न्यू फोल्डर, जो भी आपको नाम देना, अगर आपने यहाँ दिया है माई व्यू या माई व्यूज दिया है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? वही नाम रखना पड़ेगा। क्या नाम से? माई व्यूज। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे? सारे व्यूज कहाँ मिलेंगे? तो वेब INF में माई व्यूज होना चाहिए। तो अभी आपके सारे, और कौन सा हो गया? व्हाट विल बी द एक्सटेंशन? तो यहाँ पर आपके सारे JSP फाइल्स होंगे। क्या होंगे सारे? तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट था। ठीक है, अब आपको हिट करना है, आपको कुछ देखना है तो आप कंट्रोलर में जाओ और एक क्लास बनाओ। तो एक क्लास बनाओ माई कंट्रोलर, जो भी आपको नाम देना है। ठीक है, गिव इट नेम, वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव। आई विल से माई कंट्रोलर। सो दिस इज माई कंट्रोलर क्लास। नाउ whenever the front end will hit, it will hit for endpoints. सो फ्रंट एंड जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा ना तो एंड पॉइंट्स में भेजेगा। ये मॉडल समझ में आ गया ना? इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा साइड में, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो फ्रंट एंड को कोई भी टास्क करने का रहेगा ना तो हमारा लोकल होस्ट है, ठीक है, क्योंकि सेम मशीन पे ही है हमारा सर्वर। तो लोकल होस्ट कॉलन कौन से पोर्ट पे चल रहा है, तो आपका जो भी सर्वर पोर्ट चल रहा होगा 8081। उसके बाद जो भी स्लैश के बाद में आएगा वो आपका एंड पॉइंट आएगा। तो अगर उसने बोला है एंड पॉइंट स्लैश कौन सा, बोलो भाई। नहीं, ये वाला फ्रंट एंड ने क्या भेजा? फ्रंट एंड ने क्या भेजा? रिक्वेस्ट स्लैश हेलो। तो ये हेलो नाम का एंड पॉइंट आपके कंट्रोलर में होना चाहिए। तो हम वो कैसे करेंगे? रिक्वेस्ट मैपिंग यूज करके। क्या यूज करेंगे? रिक्वेस्ट मैपिंग, और डबल कोट्स के अंदर, ब्रैकेट में डबल कोट्स में वो मैपिंग का नाम देंगे विद द स्लैश। तो कौन सा मैपिंग है? हेलो। ओके, तो ऐसे आपका सर्वर में होगा, और ये फिर कोई ना कोई फंक्शन से सिंक लिंक्ड अप होगा जो मुझे स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जो एंड पॉइंट होता है उसी नाम का फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ओके, और ये फिर क्या करेगा? रिटर्न करेगा हमको व्यू का नाम। तो इसने क्या रिटर्न किया समझो? ठीक है, दीज थ्री कैन बी डिफरेंट। ओके, ज़रूरी नहीं कि ये तीनों सेम ही हो। मैं सिर्फ एग्जाम्पल सेक के लिए सेम रख रहा हूँ, आप अलग अलग भी रख सकते हो। तो ABC, इसका LMN, और इसका XYZ भी रख सकते हो। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आपके बिजनेस के ऊपर है क्या ऐसा करना है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट इन अभी। तो क्लाइंट ने क्या हिट किया? क्लाइंट ने अपना ब्राउज़र ओपन किया और क्लाइंट ने ब्राउज़र में आके URL में क्या पंच किया? URL ने, क्लाइंट ने क्या पंच किया? सो क्लाइंट ने क्या पंच किया फ्रंट एंड से उसके URL में? तो जो पोर्ट के बाद में स्लैश, जो पोर्ट के बाद का स्लैश है, जो पोर्ट के बाद का स्लैश है ना, वो एंड पॉइंट है। तो ये एंड पॉइंट कहाँ मिलना चाहिए हमको? यहाँ पर। हाँ, तो ना कोई रिक्वेस्ट मैपिंग का। तो जब ये रिक्वेस्ट आएगी तो डायरेक्टली वो इस जगह पे आ जाएगी, इस कंट्रोलर पे जाएगी। अगर उसने हिट किया होता स्लैश
ABC क्या हिट किया था, /ABC, तो कहाँ गई होती रिक्वेस्ट, इस वाले कंट्रोलर मेथड में, क्योंकि ABC को रिक्वेस्ट किया रिसीव कर रहा है ना, समझ रहा है? ओके, फिर ये रिक्वेस्ट आ गई तो उसने क्या रिटर्न किया, हेलो। हेलो क्या होगा, तो हेलो होगा एक व्यू का नाम, क्या होगा, तो आपके वेब INF में जो माय व्यूज फोल्डर है उसमें एक फाइल होना चाहिए, क्या नाम की, hello.jsp। तो क्या आपने क्या बोला है कि मेरे हर व्यू के पहले क्या लगेगा, वेब INF माय व्यूज, और हर व्यू के बाद क्या लगेगा, तो उसको बोलते हैं, तो ये काम है व्यू रिजॉल्वर का। किस काम है, तो जैसे हम लोग कोई व्यू का नाम रिटर्न करते हैं, व्यू रिजॉल्वर यहाँ जाता है इस फाइल में जो हमने बनाया ना XML फाइल, तो जब भी हम व्यू रिटर्न करते हैं तो व्यू रिजॉल्वर इस फाइल में जाएगा और देखेगा कि भाई मैंने तो रिटर्न किया है हेलो, तो हेलो के आगे क्या लगाऊं, तो देखो /webinf/views में हेलो नाम की .gc फाइल है क्या, तो फिर वो यहाँ जाके सर्च करेगा न्यू JSP फाइल, किस नाम की, हेलो, और वो कॉल हो जाएगी और क्या बोलेंगे हम लोग, वेलकम टू फुल स्टैक डेवलपमेंट, या वेलकम टू स्प्रिंग MVC। सही है, तो ये हेलो फाइल कब ट्रिगर होगी, तो मुझे फिर जाके कंट्रोलर में बताना पड़ेगा। तो पहले क्या बनाऊंगा, रिक्वेस्ट मैपिंग बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, रिक्वेस्ट मैपिंग, तो क्या नाम से, जो भी आपको नाम देना है, ओके, तो मैं दे रहा हूँ /hello, और उसको कौन से फंक्शन से लिंक कर रहा हूँ, उसी फंक्शन, तो स्ट्रिंग रिटर्न टाइप क्यों है, क्योंकि हम रिटर्न करने वाले व्यू का नाम, क्या रिटर्न करने वाले हैं, तो व्यू का नाम क्या है, ओके। अब ये जो क्लास जो है कंट्रोलर, ये कंट्रोलर क्लास है क्या नहीं, इसके लिए हमारे पास दो एनोटेशन है, ऐट कंट्रोलर और ऐट रेस्ट कंट्रोलर। कितने एनोटेशन है कंट्रोलर क्लास बनाने के लिए, बोलो भाई, दो। सो कब कब कंट्रोलर यूज करना है और कब रेस्ट कंट्रोलर यूज करना है, उसका डिफरेंस मैं सबको समझाता हूँ। व्हेन डू वी हैव टू यूज कंट्रोलर and when do we have to use rest controller, is screen visible, so अगर आप जो है व्यू को रिटर्न कर रहे हैं, किसको रिटर्न कर रहे हैं, so whatever you are returning is the name of the view, is the, अब जैसे मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ, क्या रिटर्न कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या रिटर्न कर रहा हूँ अगर मैं, तो ये हेलो, तो हेलो क्या रहेगा, ये हेलो क्या रहेगा, तो वेब INF में किस में, माय व्यूज में क्या होगी, एक फाइल होगी किस नाम की, तो किस फाइल किस, अगर मैंने व्यू रिजॉल्वर में दिया होगा सफिक्स एज HTML, तो फाइल किस नाम की होती थी,
जो कंट्रोलर है वो क्या रिटर्न करता है हमेशा? व्यू। रेस्ट कंट्रोलर जो है जेसन डेटा रिटर्न करता है। क्या करता है? क्या करता है रिटर्न? तो अगर मुझे जेसन डेटा रिटर्न करना है मेरे फ्रंट को, तो जेसन डेटा जावास्क्रिप्ट यूज करके उसको पार्स कर लेगा। तो अगर मुझे ये डेटा पूरा का पूरा डेटा ही रिस्पॉन्स रिटर्न करना है ऐसा एज इट इज जेसन फॉर्मेट में, फिर वो फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट जेएस करके लाइब्रेरीज है जावास्क्रिप्ट के जो जेसन डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये भेजना है, इस फॉर्मेट का डेटा भेजना है फ्रंट एंड को, तो फिर मैं क्या क्या यूज़ करूँगा? रेस्ट कंट्रोल क्या यूज़ करूँगा मैं? तो अगर मुझे रोल नंबर 101 एस नेम एलिस परसेंटेज 78.5 कुछ इस फॉर्मेट का डेटा रिटर्न करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? बोलो। तो कंट्रोलर क्लास के ऊपर, जो कंट्रोलर क्लास जो होती है ना, जो अपने अपने बनाए माई कंट्रोलर, जो अपने कंट्रोलर क्लास है माई कंट्रोलर, उसके ऊपर ही एनोटेशन लगता है, एनोटेशन। तो अगर मैंने लगा दिया ऐट कंट्रोलर एनोटेशन, मतलब जो भी रिटर्न होगा वो क्या होगा? और अगर मैं लगा दूँ एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, तो अब जो रिटर्न होगा वो क्या होगा? व्यू नहीं होगा, वो एक्चुअल डेटा होगा। सो अगर मैंने एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर लगा के बोला रिटर्न हेलो, तो क्या होगा? तो वो हेलो ही भेज देगा। क्या भेज देगा वो? आपके ब्राउजर पे क्या दिखेगा फिर? हेलो ही दिखेगा। क्या दिखेगा? क्योंकि वो डेटा भेज रहा है, व्यू नहीं भेज रहा है। और इसने अगर हेलो भेजा है और आपके पास एक हेलो डॉट जेएसपी है जो आपको दिखा रही है ऐसा H1 वेलकम टू FSD, तो वो क्या दिखाएगा? तो फिर अगर उसने रिटर्न किया है हेलो, तो क्या जाएगा वो? हेलो वाले व्यू को जाएगा। और क्या दिखाएगा आपके ब्राउजर पे? हाँ भाई, यस, तो वो व्यू खुल जाएगी। समझ में आया तुम लोग को डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है बताओ एट द रेट कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर में? So at the rate controller annotation is used when we are like we are using the Returning the view. it will return the like a view name and correspond view name. Rest controller will return the actual This data. control it will return the data. ओके। सो यहाँ पर मैं क्या क्या रिटर्न कर रहा हूँ? हेलो। हेलो क्या? हेलो मेरी व्यू है क्या? तो क्या यूज़ करूँ, कंट्रोलर क्या रेस्ट कंट्रोलर? ठीक है, एट कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वो करके उसको इंपोर्ट कर लो। सही है। बस आपका सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रेडी हो गया। फिर अभी आप जाओ और स्टॉप ऑल द प्रीवियस रनिंग एप्लीकेशंस, कंसोल को क्लियर करो और राइट क्लिक करो आपके एप्लीकेशन पे, रन एज रन ऑन सर्वर करो। फिर आपका सर्वर चूज़ कर लो जो आपने कॉन्फ़िगर किया है और फिनिश करो, तो आपका कोड रन हो जाएगा आपके पोर्ट के ऊपर। As the application load,
It will open up the browser. Okay. टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है स्टार्ट होने में। ऐसा देखो, जब वो लोड हो जाता है तो ऐसा खुल जाता है। तो अभी कौन सा एंड पॉइंट हिट करना है अपने को? हेलो। हेलो। तो जो हेलो एंड पॉइंट हिट करेंगे तो वो व्यू रिटर्न कर देगा इन रिस्पॉन्स। जो हमारे हेलो व्यू है वो रिस्पॉन्स में आ जाएगी, जो हमने लिखा उसके अंदर H1 टैग में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। प्रोसेसिंग कर रहा है, इधर चक्री घूम रही है, ठीक है। तो लेट द प्रोसेसिंग कंप्लीट फर्स्ट एंड देन वी विल सी what response it is returning, and it returns us the view. Got it? समझ में पूरा यस। साइकिल? तो समझ में साइकिल एंड टू एंड पूरा कहाँ से शुरू हुई थी? हाँ यस। सो नाउ लेट्स गो अहेड। ये डायग्राम को आपस में ड्रॉ करता हूँ अच्छे से, थोड़ा और वाइडली, ठीक है। अब ये जो ग्रीन एरो है ये कहाँ से कहाँ आ रहा है, कौन बताएगा? और रेड एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है? फ्रंट एंड से कंट्रोलर के पास बैक एंड वाला। तो ग्रीन एरो ना, तो जब भी आप फ्रंट एंड से कुछ बैक एंड को भेजेंगे तो आप यूज़ करेंगे @मॉडल एट्रीब्यूट। क्या यूज़ करेंगे? बोलो। ये कब यूज़ करेंगे? जब आप कोई डेटा कहाँ से कहाँ भेज रहे हो, फ्रंट एंड टू कंट्रोलर, वेरी गुड। और जब आप कोई डेटा बैक एंड से भेज रहे हो फ्रंट एंड को, तो उसके लिए 3 ऑप्शंस हैं। वो 3 ऑप्शन ये हैं, एक मॉडल है, एक मॉडल मैप है, और एक मॉडल एंड व्यू है। कितने तरीके हैं, बोलो कौन से कौन से? तो ये 3 तरीके कहाँ से किसके हैं? और मॉडल एट्रीब्यूट क्या है? है ना। सो अब अगर मुझे इस व्यू को कुछ भेजना है, ये हेलो व्यू है, ठीक है, तो मुझे इसको कुछ भेजना है, लेट्स से मुझे कुछ नाम भेजना है, ठीक है। तो मैंने क्या नाम भेजना है ये, अब इसको मुझे कहाँ भेजना है, कौन से व्यू को भेजना है? हेलो को, है ना। सो मैं अभी किधर हूँ, ये जो कोड है हम लोग लिख रहे हैं कंट्रोलर ये किधर है, फ्रंट एंड में क्या बैक एंड में? तो बैक एंड से मुझे कहाँ भेजना है, फ्रंट एंड को ना, इसको भेजना है। तो मैं यूज़ करूँगा मॉडल। तो यहाँ पर क्लास जो अपना फंक्शन है उसका पैरामीटर पास करने का हमेशा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ओ किया और फिर यहाँ पर लिख देने का मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, क्या नाम से? तो फ्रंट एंड में किस नाम से पुकारा जाएगा ये डेटा? इस नाम से। कौन सा डेटा? ये डेटा। तो जब हम हेलो में जाएंगे तो विराट कोहली स्ट्रिंग को किस नाम से पढ़ेंगे? तो ये जावा के बैकएंड के लिए क्या है ये, और फ्रंट एंड के लिए क्या है? अब हम लोग इस व्यू में आते हैं, यहाँ पर अगर आपको दिखाना है वेलकम विराट कोहली, तो उसको ऐसे लिखना, डॉलर और पैरेंथेसिस में, और क्या लिखना, तो क्या आएगा अभी? तो अभी आउटपुट क्या आएगा? क्या इशू आ रहा है इसमें? EOF कहाँ से आ गया है इसमें? ठीक है, प्रोजेक्ट क्लीन कर लो एक बार अगर तुमको ये टाइम पास कराए तो।
कोई सिंटैक्टिकल मिस्टेक नहीं है, डॉलर दे दिया, ठीक है। अब जब आप हिट करोगे तो क्या आएगा, सो अब मैं जा रहा हूँ और वापस हिट करता हूँ मेरे व्यू को, यहाँ पर मेरा व्यू है, दिख रहा है इसके तुम लोग को, आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसा मॉडल से डेटा भेज सकते हैं आप, यू कैन सेंड एनी डेटा इफ़ यू वांट टू सेंड, यू कैन सेंड एंटायर ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो ये भी मॉडल क्लास में जाता हूँ और मॉडल पैकेज में जाके एक नई क्लास बनाता हूँ, न्यू क्लास, और उसका नाम देता हूँ प्लेयर क्लास, ठीक है। और प्लेयर क्लास में जाके फिर मैं प्राइवेट इंटीजर पियानो, प्राइवेट स्ट्रिंग पी नेम, प्राइवेट इंटीजर मैचेस प्लेड, प्राइवेट इंटीजर रन्स कोड, ये अलग अलग एट्रीब्यूट दे देता हूँ। और फिर सोर्स पे जाके सब उसके कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। ये हो गया ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। तो ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर के साथ में नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर भी बनाओ, सेटर गेटर्स भी बनाओ, वो स्ट्रिंग भी बनाओ जो हम लोग नॉर्मली बनाते हैं हर क्लास के लिए, ओके। अब मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेजना है, तो पहले मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, प्लेयर माई प्लेयर इक्वल्स टू न्यू प्लेयर, और माई प्लेयर डॉट सेट मैचेस प्लेड 100, माई प्लेयर डॉट सेट प्लेयर नेम, माई प्लेयर डॉट सेट p number 18, my player dot set runs code 10,000। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा माई प्लेयर ही भेज रहा हूँ, ठीक है। तो टॉप प्लेयर में क्या आ गया, एक स्ट्रिंग ही क्या पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब उसको ऑब्जेक्ट को अपने को यहाँ पढ़ना है तो अपन उसको डॉट लगा के रीड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर मुझे बाकी सारे एट्रीब्यूट्स भी दिखाने हैं, प्लेयर नंबर, प्लेयर नेम, तो फिर आपको मालूम है कि अभी प्लेयर के अंदर जो है वो, तो उसका मुझे प्लेयर नेम तो आ गया, तो यहाँ पर क्या करूँगा, प्लेयर डॉट क्या नाम है, पी नेम है ना, और फिर बाकी जो भी चीज़ें दिखानी है, मैचेस प्लेड, तो क्या आएगा, प्लेयर डॉट एम पी है ना, इसको H3 में ले लेते हैं। मैचेस प्लेड रन्स कोड, और प्लेयर जर्सी नंबर, क्या आएगा, मैचेस प्लेड आ गया, रन्स कोड क्या है, RS, और जर्सी नंबर क्या है, PNO या JNO है, क्या है, PNO P नेम MPRS, ठीक है। तो PNO P नेम MPRS, अभी देखो सेव कर रहा हूँ मैं, अब जाके व्यू को हिट कर, उसको हिट करता हूँ एंड पॉइंट को, तो अब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हम डिस्प्ले कर सकते हैं।
गया? यस और नो? Yes. तो हम लोग ऐसे मॉडल यूज़ करके अपने कंट्रोलर से डेटा भेज सकते हैं फ्रंट। ठीक है, सेम काम करता है मॉडल मैप भी। मॉडल मैप में आप मल्टीपल चीज़ें भेज सकते हो। अगर आप मॉडल मैप यूज़ करते हो तो आप मल्टीपल चीज़ें भेज सकते हो। जैसे मैं एक और एंड पॉइंट बनाता हूँ, ठीक है। अभी उसने वेलकम हिट किया समझो, ठीक है। तो मैं एक व्यू को हिट करूँगा, लेट से कुछ भी नाम देता हूँ FSD। तब FSD क्या होना चाहिए? अब मुझे उसको मल्टीपल चीज़ें भेजनी है, तो मैं क्या करूँगा, मॉडल मैप यूज़ करूँगा। कुछ भी ऑब्जेक्ट दे दो आप, जो आपको नाम देना है, ठीक है। तो अभी मैं उसके अंदर मुझे प्लेयर भी भेजना है। ओके, नाम अलग अलग दे देंगे हम लोग। तो कैप्टन स्ट्रिंग में कौन है, प्लेयर में कौन है, ठीक है। कुछ और स्ट्रिंग भी पास कर देंगे, कोच दे देंगे। अभी आज कितने स्ट्रिंग हो गए? अभी कितना डेटा हो गया? दो string है, एक object है। अभी मुझे सब कुछ भेजना है मुझे, तो ऐसे मॉडल मैप से भेज देंगे की वैल्यू पे ऐसे। तो विराट कोहली का रिकॉर्ड किससे गया? Yes. प्लेयर से। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड किससे गया? तो फ्रंट एंड में क्या नाम से पुकारेंगे उसको? और इसका रिकॉर्ड किससे गया, गंभीर का? ठीक है। तो अब अगर मुझे ये चीज़ें एक्सेस करनी है इस वाले व्यू में, मैं कैसे एक्सेस करूँगा? FSD में। तो अगर मुझे दिखाना है कैप्टन नेम, तो कैसे दिखाऊंगा? वेलकम, तो अगर मैं कर दूँ वेलकम कैप, तो कौन मतलब? यहाँ दिखा दो वॉच नेम। तो मैं मल्टीपल चीज़ें भेज रहा हूँ ना अभी, है ना। तो फिर मॉडल मैप अच्छा है उसके लिए। तो अब मुझे ये कैसे एक्सेस करूँगा ये एंड पॉइंट? अभी मैं क्या बोल के, बढ़िया, मैंने ऐड किया है लास्ट रन के बाद में। तो स्टॉप, रन को स्टॉप करूँगा और ही रन करूँगा, क्योंकि वो चेंजेस रन के पहले थे ना। ठीक है, कौन सा एंड पॉइंट? सब चीज़ें डिस्प्ले कर देगा वो, प्रोसेस कर रहा है अभी तो। आ गया? ये सुनो, ये क्या हो गया? मॉडल एंड व्यू क्या हो गया ये? हो गया मॉडल
व्यू बाकी है ना। मॉडल एंड व्यू क्या होता है, तो ये मॉडल और मॉडल मैप में क्या होता है तो मॉडल में हम लोग अक्सर एक डेटा भेजते हैं, मॉडल मैप में मल्टीपल डेटा भेज देते हैं। मॉडल एंड व्यू में क्या होता है कि मेरे को समझो एक और फंक्शन बनाया मैंने, ये कौन सा था, हेलो था, मैंने बना दिया ग्रीड। क्या बना दिया मैंने, तो कौन से हिट करेंगे इसको, ठीक है, अब कुछ भी नाम, जब उसको रवि को भेज देंगे तो रवि क्या होगा अभी, एक व्यू होगा, ठीक है। तो ये व्यू है क्या हमारे पास, ये व्यू, तो उसके लिए मैं कॉपी करता हूँ डायरेक्ट व्यू का नाम और पेस्ट करता हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, केस सेंसिटिविटी ऐसा वैसा, ठीक है। और अभी इसमें क्या होता है व्यू के अंदर, मॉडल एंड व्यू में आपको पैरामीटर में देने की ज़रूरत नहीं। जैसे देखो, मॉडल जब भी पास किया तो पैरामीटर, फंक्शन की पैरामीटर में दिया, मॉडल मैप पास किया फंक्शन की पैरामीटर में दिया। अब अगर आपको मॉडल एंड व्यू भेजना है ना, तो आपको यहाँ देने की ज़रूरत नहीं, आप इसको डायरेक्टली यहाँ कर सकते हैं, क्रिएट मॉडल एंड व्यू, ठीक है। और कुछ भी ऑब्जेक्ट दे दो उसको, MAV इज न्यू मॉडल एंड व्यू, और फिर यहाँ पर आपको डायरेक्टली व्यू का नाम देना है। समझ में आया। और रिटर्न आपको MAV करना है। तो ये जो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, MAV किस टाइप का वैल्यू है, तो स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा, क्या रिटर्न करेगा वो। और यहाँ पर फिर आप ऐड ऑब्जेक्ट से कर सकते हो, क्या किससे कर सकते हो, इसमें ऐड एट्रीब्यूट नहीं है, क्या है, ऐड ऑब्जेक्ट दिख रहा है। समझ में आया। तो अगर आपको पैरामीटर नहीं पास करना है, नॉन पैरामीटर रखना है उसको, तो फिर आप मॉडल एंड व्यू करके डायरेक्टली MAV रिटर्न कर दो। रिटर्न टाइप भी क्या हो गया इसका, MAV हो गया। अब मैं हिट करता हूँ ग्रीट को, तो ग्रीट, ठीक है। तो वही कॉपी कर लेते हैं, FSD से कुछ चेंजेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देंगे, या रोहित शर्मा की जगह पे कुछ और डाल देंगे, या राहुल डाल देंगे, विराट कोहली को रहने दो, या गंभीर की जगह पे एलिस डाल देंगे, ठीक है। अब सेव किया मैंने, अब जाके हिट करते कौन सा एंड पॉइंट, और ये अभी कब कब ऐड हुआ था, लास्ट रन के बाद ना, चेक करते डिटेक्ट करता है क्या, डिटेक्ट किया, अच्छी बात है, वरना 404 आ जाएगा। ग्रेट, shouldn't take this much time usually. I guess my system is overloaded with a lot of information, so it is taking time to the server to respond. On your machine, the response should come within a second. आ गया, KL, राहुल और एलिस, है ना। ये तीन तरीके क्या थे, ये तीन तरीके क्या थे। अभी अगर हमको यहाँ से कोई डेटा भेजना है उसको, तो हम कैसे भेजेंगे उसको, मॉडल एट्रीब्यूट से। समझो कि मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक मिनट, 1-2 मिनट का ब्रेक लो, फिर वापस आते हैं। तो नाउ लेट्स ट्राई टू गेट अ मॉडल एट्रीब्यूट ऑल्सो। सो मॉडल एट्रीब्यूट कब यूज करते हैं हम लोग, बोलो,
we are passing data from front end to back end. Correct. So I showed you all the three way of the back end to front end के तीन तो बता दिया मैंने ना. तो ये एरो तो आपने कवर कर. अब ये एरो कवर करते हैं. तो इसका एग्जांपल कैसा होता है मालूम है क्या? एक काम करते हैं, हम बनाते हैं रजिस्ट्रेशन पेज जो हमने शुरू में डिस्कस किया था. तो क्या क्या लगेगा रजिस्टर करने के लिए? एक स्टूडेंट को उसका रोल नंबर लेते हैं, नेम लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं. ठीक है. तो क्या होगा मालूम है क्या? इसमें हमेशा हम लोग बैकएंड से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजेंगे. ठीक है. तो अब ये मेरा जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है ये भरा हुआ है कि एम्प्टी है ये? तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट मैं भेज रहा हूँ बैकएंड से फ्रंट. तो क्या यूज करके भेजूंगा मैं? मॉडल और मॉडल एक ही ऑब्जेक्ट है ना. मॉडल से भेज देंगे. अब मॉडल से हम लोग क्या करेंगे? इसको फ्रंट एंड में यहाँ रिसीव कर लेंगे. ठीक है. क्या कर लेंगे इसको हम लोग फ्रंट एंड में? रिसीव. तो अभी ये जो खाली है तो ये एम्प्टी दिखाएगा सब. रोल नंबर 0 दिखाएगा, ये सब एम्प्टी नल रहेगा, सब ब्लैंक रहेगा समझ लो. ये 0.0 रहेगा. फिर मैं इसको पॉपुलेट कर दूंगा एक्चुअल वैल्यूज से. तो वो जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया था अभी वो भर गया है ना. ठीक है. सो ये जो व्यू है जो उसको कर रही है इसको मैं बोलूंगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म. क्या करूंगा मैं? तो कौन से व्यू को भेजूंगा मैं? बोलो भाई. तो यहाँ पर जब तो यहाँ पर ये एस फंक्शन होगा तो लेट से ये होगा एक रिक्वेस्ट मैपिंग. ठीक है. और होगा रजिस्टर स्टूडेंट. क्या होगा? क्या होगा? ओके. रजिस्टर स्टूडेंट. और ये क्या करेगा? एक स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा. जो नाम का एंड पॉइंट में उसी नाम का ये है एसेंट फॉर्म. उसको फॉर्म दे देंगे हम लोग. ओपन द रजिस्टर स्टूडेंट फॉर्म. और ये एक मॉडल लेगा क्योंकि मुझे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजना है. राइट. तो समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है? अब मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया. ओके. एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. अब ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट को फ्रंट एंड से क्या नाम से पुकारेंगे? तो हम डाल देंगे मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट में. क्या नाम से पुकारेंगे उसको? लेट से स्टूडेंट नाम से. किसको? इसको पुकारेंगे स्टूडेंट नाम से S1. और अभी मैं रिटर्न कर दूंगा कौन से व्यू को? कौन बताएगा? इधर है ना. है ना. तो इसका से व्यू रिटर्न कर देंगे. तो अभी ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट कौन से व्यू में आ जाएगा? अभी इसमें आ गया. ठीक है. अब जब ये आया था तो वैल्यूज क्या थे इसके? जब ये आया था तो वैल्यू क्या थे इसके? सब 0 थे, नल थे ना. तो 0 था, नल था, 0.0 था. तो वो मैं दिखा दिया इधर. ठीक है. लेट से ब्लैंक थे सब. फिर मैंने इसको पॉपुलेट कर दिया अच्छे से एक्चुअल वैल्यूज से. 18, विराट और 78.5. अब जब मैं क्लिक करूंगा सेव पे तो क्या होगा? अब जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए? ये डेटा पूरा जाना चाहिए एक व्यू को, है ना, एक कंट्रोलर को. तो
कौन से कंट्रोलर को जाना है तो वो हम इस फॉर्म के एक्शन में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? फॉर्म के एक्शन में। तो लेट्स से कि ये जा रहा है सेव स्टूडेंट वाले एक्शन को। किसको जा रहा है? किसको जा रहा है? तो ये क्या है? ये कंट्रोलर एंड पॉइंट है क्या? ये क्या है? सेव स्टूडेंट क्या है? एक नहीं, व्यू नहीं है, व्यू में तो ऑलरेडी है ना। कंट्रोलर एंड पॉइंट है वो। एक्शन एक्शन मतलब कंट्रोलर एंड पॉइंट। जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो कहाँ जाएगा वो? फॉर्म के। जब सेव पे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएगा? फॉर्म के एक्शन पे जाएगा। किस पे जाएगा? फॉर्म का एक एट्रीब्यूट है एक्शन। तो कौन से एक्शन को भेज रहा है वो? सेव स्टूडेंट नाम का क्या होगा? एक रिक्वेस्ट मैपिंग होगा कंट्रोलर में। अब ये जो डिटेल है 18 विराट और 78.5 ये फ्रंट एंड से जा रहे हैं ना। तो फॉर्म का एक और एट्रीब्यूट है मॉडल एट्रीब्यूट। क्या है? तो मॉडल एट्रीब्यूट हमने कौन सा मंगाया था? ऑब्जेक्ट याद है तब? फ्रंट ये जो S1 है ये फ्रंट एंड में किस नाम से रेफर हो रहा था? ये जो S1 बैक एंड का S1 है फ्रंट एंड में किस नाम से रेफर हो रहा था? तो ये उसका मॉडल एट्रीब्यूट है। अब ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पूरा भर के आ रहा है मेरे पास, करेक्ट? सारे वैल्यूज लेके आ रहा है। 18 विराट 78.5। जब ये गया था तो खाली गया था ना? जब ये ऑब्जेक्ट गया था तो खाली गया था। कैसे गया था ये? 0 नल और 0.0 है ना? ऐसा ऐसा गया था ना? तो ये 0 नल 0 कौन से मॉडल एट्रीब्यूट में आ गया था? स्टूडेंट में। अब जब ये आ रहा है तो फिल होके आ रहा है। तो जो एंड पॉइंट का नाम वही नाम से मैं फंक्शन बना दूंगा। क्या नाम से? सेव स्टूडेंट है ना? अब ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है फिल होके ये किस में आएगा? फ्रंट एंड से आ रहा है कि बैक एंड से आ रहा है? फ्रंट एंड से आ रहा है। तो फ्रंट एंड से हम कैसे रिसीव करते हैं? और कौन से क्लास का है? तो कौन से क्लास का है? स्टूडेंट क्लास का है। और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? स्टूडेंट है। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट का नाम बदल सकते हो, आपको रखना तो आप चेंज भी कर सकते हो, चाहे तो सेम यूज कर लो। अब ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है ये पूरा फील्ड ऑब्जेक्ट आया है मेरे पास अभी, करेक्ट? ये सुनो। अब मैं यहाँ पर आके कंसोल पे दिखाना चाहूँ, कंसोल पे कि क्या डेटा आया है, तो मैं क्या करूँगा? स्टूडेंट डॉट गेट नेम जो भी रहेगा ना, जो भी एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है ना? तो हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं इसको। समझ में आया पूरा साइकिल? देखो तो अभी हमारे पास जो है वो प्लेयर क्लास का है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी एक एंड पॉइंट बनाएंगे, रजिस्टर प्लेयर फॉर्म। क्या करेंगे? बोलो भाई, बी विथ मी। क्या बनाएंगे? एंड पॉइंट। ओके, उसको क्या करेंगे फिर? एक एम्प्टी अपने को प्लेयर का डिटेल्स भेजने हैं, तो एक एम्प्टी प्लेयर बनाएंगे। ओके, और इसको किससे टाइप कर देंगे? इस P1 को एक मॉडल में एट्रीब्यूट कर देंगे। जहाँ भी P1 है वो किस नाम से रेफर होगा?
प्लेयर नाम से। तो उसको जो भी आपको नाम देना है आप यहाँ पर नाम दे सकते हो। तो भाई ये जो P1 है जब फ्रंट एंड को जाएगा तो किस नाम से होगा, प्लेयर नाम। और कौन से व्यू को भेज देंगे उसको, कौन से व्यू को भेज देंगे बोलो, रजिस्ट्रेशन को। प्लेयर रजिस्ट्रेशन। अब ये व्यू बना लेंगे हम लोग, राइट, .jsp नाम से, करेक्ट। समझ में आ रहा था तुमको एक एक स्टेप। ओके, उसमें फिर हमको 4 टेक्स्ट बॉक्स लेने पड़ेंगे। प्लेयर नेम है ना, प्लेयर नंबर, प्लेयर नेम, मैचेस प्लेड, रन्स कोड, है ना। तो अब वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा पॉपुलेट। जब सेव पे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएगा, कौन से एंड पॉइंट पे, एक्शन पे। एक्शन कौन सा है, सेव प्लेयर। तो सेव प्लेयर हम बनाएंगे इधर, सेव प्लेयर। अब सेव प्लेयर को क्या आ रहा है, पूरा का पूरा बना बनाया ऑब्जेक्ट आ रहा है, फुल्ली पॉपुलेटेड ऑब्जेक्ट विद रियल डिटेल, है ना। तो जब फ्रंट एंड से डेटा आता है तो हम किस में रिसीव करते हैं उसको, @ और वो जो प्लेयर है वो मेरे प्लेयर क्लास के ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, राइट। और मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ तो या तो मैं वॉइड करके वही डिस्प्ले कर सकता हूँ, या फिर मैं वापस एक फॉर्म पे दिखा देता हूँ, प्लेयर विराट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। क्या दिखाऊंगा मैं, क्या दिखाऊंगा, ये कौन सा एंड पॉइंट है, confirm.jsp। कौन सा एंड पॉइंट है ये, कौन सा व्यू है ये। अब मुझे जब सेव स्टूडेंट पे आ गया तो वापस कहाँ भेजना है, सेव स्टूडेंट से इस व्यू को भेजना है, और वो भी विराट कोहली का डिटेल्स भेजना है। तो अभी यहाँ भी लगेगा एक मॉडल, है ना। क्या लगेगा, कि हम वापस भेजना है ना एक व्यू। तो फिर आप यहाँ पर कॉमा दे के, या अगर आपको कॉमा नहीं देना है तो आप मॉडल एंड व्यू बना लो। क्या बना लो, क्या बना लो, मॉडल एंड व्यू, न्यू मॉडल एंड व्यू। तो कौन से उसको जाने वाला है वो, बोलो भाई, कंफर्म पे आने वाला है, राइट। और इसमें क्या ऐड करना है ऑब्जेक्ट अपने को, तो फ्रंट एंड पे क्या नाम से बुलाएंगे उसको, प्लेयर को, कौन से प्लेयर को, जो मेरा प्लेयर है, ठीक है। अभी आप समझ रहे हैं आप लोग अभी। और रिटर्न एम कर रहा हूँ मैं, एम किस टाइप का है, मॉडल एंड व्यू। तो यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, रिटर्न टाइप क्या आएगा, मॉडल एंड व्यू आएगा ना, रिटर्न टाइप। ये एम किस टाइप का है, इस टाइप का। सो अभी देखो ये जो मेरा प्लेयर है ये फ्रंट एंड में किस तरह से पुकारा जाएगा, प्लेयर में। तो यहाँ मैं कैसे कैसे शो करूँगा उसको, H1 में बोलो, H1 टाइप में कैसे रेफर करेंगे अपन, प्लेयर, और फिर जो डेटा वहाँ से आ रहा है वो कैसे रेफर करते हैं हम लोग, डॉलर पैरेंथेसिस में। और क्या बोलेंगे, प्लेयर डॉट पी नेम रजिस्टर्ड। समझ रहा है रविंद्र, चलो वापस स्टार्ट आता हूँ मैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आते हैं। पहले आप कौन सा व्यू, कौन सा एंड पॉइंट हिट करेंगे, स्टेप 1। चलो ये पहले चलो ये बना लेते, पहले ये बना लेते। तो कंट्रोलर में गया और क्या हो गया, सब गायब कैसे हो गया,
ठीक है, तो तुम लोग का कौन सा है अपना ये ITV वीकेंड MVC, इसमें आ गया हमारे कंट्रोलर में। क्या बनाया एंड पॉइंट बोलो, बोलते जाओ। तो स्लैश रजिस्टर प्लेयर, ये किससे लिंक होगा, एक स्ट्रिंग जो एंड पॉइंट का नाम, ये रजिस्टर फॉर्म है ना, तो जो एंड पॉइंट का नाम वही सिस्टम, राइट। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग एक एम्प्टी प्लेयर बनाएंगे और उसको अपने को फ्रंट एंड को भेजना है, एक व्यू को भेजना है। कौन सी व्यू को, है ना। अब ये एम्प्टी प्लेयर को इस व्यू को भेजना है, तो कैसे भेजेंगे, मॉडल से। तो मॉडल अब हम एज ए पैरामीटर लेते हैं फंक्शन का, और उसमें एक और एट्रीब्यूट करते, क्या नाम, किसको, E1, सही है, ये सुनो। तो अभी हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, किस नाम की, ओके। यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर्म बना लेंगे, राइट, जिसमें हम डिटेल्स लेंगे, है क्या नहीं। तो वो फॉर्म कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है, मैं तुमको कॉपी पेस्ट करके, मेरे फॉर्मेट था रेडी, डायरेक्ट उसी को यूज़ कर लें। तो ठीक है, ओके, ये टैग्स हमने यूज़ किया है फॉर्म के। तो ये टैग्स एक JSTL लाइब्रेरी में है, इसमें आते हैं टैग्स JSTL लाइब्रेरी, तो उसका एक जार फाइल है, वो मैं तुमको शेयर कर देता हूँ। ये एक जार आता है JSTL का, ये कॉपी किया मैंने और अपने लिब में डाल दिया, सारे जहाँ जा रहे जार्स पहले से है ना, वही डाल दिया, लिब में एक जार पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ देख लो JSTL नाम से जार होगा ये, दिख रहा है JSTL जार। तो ये जार ऐड करने से हम लोग ये लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रोल नंबर हमने क्या लिया, प्लेयर नंबर, प्लेयर नेम, हमारे पास सिर्फ मैचेस प्लेड और रन स्कोर ना, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, जेंडर ये सब ये आप निकाल सकते हो, सब मैंने आपको बताए थे बस। अपने पास सिर्फ सिंपल प्लेयर नंबर है, प्लेयर नेम है, मैचेस प्लेड है और रन स्कोर्ड है ना। तो ये कौन से उससे लिंक होगा, क्लास के एट्रीब्यूट से लिंक करना है इसको हमेशा, इनपुट को। तो क्या एट्रीब्यूट से, उसके नाम स्पेलिंग से मैच होना चाहिए, PNO PNAME MPRS है ना। तो ये क्या है, PNO नेम MP और RS, ठीक है। अब जब ये सबमिट पे क्लिक करेगा, रजिस्टर प्लेयर पे क्लिक करेगा, तो कौन से एक्शन पे जाएगा, कौन से एक्शन पे जाएगा, हाँ, वापस इस पे जाएंगे। कौन से एक्शन पे जाएगा, बोलो,
और वो जो एम्प्टी हमारा ऑब्जेक्ट आया है यहाँ से, वो क्या नाम से आया था? क्लियर नाम से। तो उसको हमको यहाँ पर बोलना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट आया है मॉडल एट्रीब्यूट, वो क्या आया है। क्लियर है ना? तो अभी हम जो दिखा रहे हैं, पी नंबर, पी नेम, एम पी आर, वो सब ब्लैंक रहेगा। जब वो फिल कर देगा और सेव करेगा तो जो फील्ड डिटेल है वो कहाँ जाएंगे? फील्ड डिटेल्स। तो सेव फील्ड डिटेल्स जाके हम लोग एक एंड पॉइंट बनाएंगे। समझ रहे थे को रविंद्र? सेव फील्ड डिटेल्स बना देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, एक फंक्शन बना देंगे। पब्लिक स्ट्रिंग। अब ये जो डिटेल्स आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? फ्रंट एंड से आ रहे हैं ना। तो फ्रंट एंड में हम किसका यूज करते हैं फ्रंट एंड से रिसीव करने के लिए? और जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कौन से क्लास का है? आपको जो नाम देना है वो दे सकते हैं। ठीक है। अब मुझे वापस भेजना है कंफर्म पेज पे, ये बोल के कि विराट रिकॉर्ड एडेड। तो विराट का नाम किस में है? P1 के नाम में है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मॉडल एंड व्यू बनाता हूँ। और मैं कौन से उसको भेजने वाला हूँ? कंफर्म। और इस मैप में एक ऐड ऑब्जेक्ट कर देता हूँ जो वहाँ पर किस नाम से पुकारा जाएगा? प्लेयर। कौन सा वाला? और मैं रिटर्न मैप करता हूँ। मैप किस टाइप का है? तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? ठीक है। तो जब यहाँ से जब वो सेव पे क्लिक करेगा तो इस ये सारा डिटेल जो है, फील्ड डिटेल, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे सर इस फील्ड डिटेल्स? इस पे जाएंगे ना, सेव प्ले डिटेल्स पे। तो सेव प्ले डिटेल्स के ऊपर सारे डिटेल्स किस में आ गए? P1 में। मैं P1 को वापस आगे भेज रहा हूँ एक और व्यू को। किसको? तो कन्फर्म नाम का व्यू बनाना पड़ेगा एक। और वहां पर अगर मुझे बताना है कि विराट का रिकॉर्ड ऐड हो गया, तो हम लोग कैसे, हाउ विल वी एड्रेस विराट एज? डॉट पी नेम है ना, तो ऑब्जेक्ट पास किया है ना। तो क्या लिख के आएगा? विराट का रिकॉर्ड ऐड। ठीक है। अभी तुमको पूरा दिखाता हूँ फ्लो। तो कस्टमर पहले क्या हिट करेगा? कस्टमर पहले क्या हिट करेगा? कौन सा एंड पॉइंट? हेलो। वो क्या करेगा? एम्प्टी प्लेयर लेके भेज देगा कौन से व्यू को? और वो एम्प्टी प्लेयर किस नाम से पुकारा जाएगा व्यू में? तो अगर यहाँ उसने यहाँ अगर दिया है माई प्ले वन, क्या नाम दिया है उसने उसको? तो इस व्यू को कैसे, इस व्यू में क्या नाम से पुकारा जाएगा वो? माई प्ले वन है ना। अब यहाँ पर उसका सब ब्लैंक डिटेल्स दिखेंगे। जब मैंने डिटेल्स को फिल कर दिया और जब सबमिट पे क्लिक किया तो कहाँ जाएगा वो? अब सेव प्लेयर डिटेल्स में फील्ड ऑब्जेक्ट आ गया ना फ्रंट एंड से। तो इसके लिए मैंने उसको किस में ले लिया? मॉडल एट्रीब्यूट में। अब जो फील्ड डिटेल है वो कौन से ऑब्जेक्ट में आ गए? और P1 को मैं भेज रहा हूँ एक व्यू को, कंफर्म को, क्या बोल के? अब और फिर कंफर्म के अंदर क्या दिखा दूंगा?
तो अगर मैंने विराट नाम से एंटर किया होगा तो क्या लिख के आएगा, समझा, है ना। तो अभी कंट्रोलों को मैं अभी किसको हिट करूं, मैं अभी जाके स्टार्टिंग ट्रिगर यहाँ से हो रहा है ना, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, उसको ट्रिगर कर रहा हूँ, दिख रहा है तुम लोग को स्क्रीन, दिख रहा है। यस यस सर। तो वो बफर हो रहा है अभी, ठीक है। तो अभी क्या होगा, एक फॉर्म खुलेगा विद द एम्प्टी डिटेल्स, करेक्ट, तो उसको हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजा है। तो टाइम लगना तो नहीं चाहिए, हाँ, तुम लोग को नहीं लगना चाहिए इतना टाइम। आ गया, दिख रहा है सब एम्प्टी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। हाँ यस। अभी मैं करता हूँ 45, रोहित शर्मा, मैचेस प्लेड 10, रन स्कोर्ड 1000 और रजिस्टर प्लेयर करता हूँ, तो क्या होगा, उस व्यू को जाएगा और बोलेगा रोहित शर्मा रिकॉर्ड एडेड, दिख रहा है, समझ में आ गया पूरा फ्लो अभी। रविंद्र, क्या भी कंफ्यूजन है? यस। हाँ हो गया सर। यहाँ पे जब आप ये जो सेव बटन करते हो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सर, जहाँ पे सेव सेव प्लेयर लिखा हो रहा है, जहाँ पर सेव जब हम प्लेयर सेकंड लिखा एंड है, पॉइंट जब ये सेव प्लेयर, जब यहाँ क्लिक, सेव प्लेयर डिटेल्स होता है, हाँ सेव प्लेयर डिटेल्स, एज हाँ व्यू से हम कंट्रोल पे डेटा पास करते हैं, इसलिए मॉडल एट्रीब्यूट किया। यस यस इसकी वजह से हमें मॉडल एंड व्यू यूज यस, हम यहाँ भी ले सकते हैं ना, हम यहाँ भी मॉडल लेके, हम यहाँ भी मॉडल लेके पास कर सकते थे, अगर मैं यहाँ भी लेता ना मॉडल, ये जो मैंने लिया है ना मॉडल, ये जो MAV लिया है ना, ये मैं यहाँ भी ले सकता था मॉडल M2 करके, और M2 में कर सकता था ऐड, फिर मुझे ये रिटर्न करना पड़ता था, हाँ राइट ओके, ठीक है। तो रिटर्न टेक्स्ट लिंक हो जाता है वापस। अगर वो तरीका से तुझे करना होता ना तो ये ऐसा होता, देखो मैं देखो कंट्रोल V करके एक को कमेंट कर देता, अगर तुझे मॉडल से ये भेजना होता तो फिर तू क्या करता है, यहाँ पर मॉडल एज ए पैरामीटर आता है, राइट, ठीक है ना, तो मॉडल मॉडल हो गया, अब ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो मॉडल में क्या करेगा, ऐड एट्रीब्यूट करेगा, क्या नाम से, प्लेयर और P1 को, एंड देन यू विल रिटर्न राइट, स्ट्रिंग हो जाता था, ठीक है, तो फिर वो मॉडल एज ए पैरामीटर चला जाता था, this will work the same. So if I come here and now I go and hit the endpoint again, you see my screen, right? Function copy कर लिया मैंने, function copy कर लिया, register customer form, ठीक है, वापस मैं इधर आया, अब नया रिकॉर्ड एंटर, देखो अभी फास्ट हो गया ना, अब 18 ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, राहुल ले लेते हैं, मैचेस प्लेड 3, रन स्कोर 300 और रजिस्टर किया, आ गया। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, RL पास रूल नहीं है, तब पूरा एंड टू एंड भाई ये है।